Assalamualaikum and welcome to the fourth lecture of international marketing. In the previous lecture, we went through the concept of seeing that किस तरह से हम एक proper plan और एक proper drafted strategy के through किसी भी market को enter कर रहे होते हैं. Whenever we are trying to work on a global perspective or internationally. तो जब भी हम उन markets को enter करते हैं तो वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं that we should be always keeping in our mind. Now, once we set our mind on working with some globalized company or working internationally, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हमने इन प्रोसेस भी रखना है और फिर बहुत सारी चीज़ों को हमने एक नोटिसेबल वे में अपने माइंड में भी रखना है बीइंग द ऑपरेटर इन दैट कंपनी और इन दैट बेसिकली इन दैट मार्केट एज वेल. A study done on global markets and how we can segmentize, target, and position our businesses in our mind was constructed in a European university by a famous theorist named as D. Giovanna Piggin. उनका उनके यूनिवर्सिटी के जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ विच इज़ रियली हेल्पफुल इन स्टडीइंग एंड इन नोइंग दैट किस तरह से हम ग्लोबल मार्केट्स को जब एंटर कर रहे होते हैं उसमें सेगमेंट करना, उसमें टारगेट करना और उसमें पोजीशन करने की स्ट्रैटेजी किस तरह से हम बनाते हैं बिकॉज दैट इज द सिंगल स्ट्रैटेजी दैट वुड बी मेकिंग यू और ब्रेकिंग यू. Similarly, we are diversifying and spreading out our consumer base, तो ऑब्वियसली वहां पर हमारे पास उस अब एक स्पेसिफाइड लोकेलिटी के लोग नहीं हैं. वी आर serving people that are all around the world now, people that have different preferences, that have different cultural, social, moral values, that have different religious affairs as well. तो उन लोगों की माइंड सेट को समझना और the biggest thing or the biggest challenge that can be seen इसके ऐसे लोगों के माइंड में अवेयरनेस लेकर आना और अपनी जगह बनाना जिनके माइंड में पहले से ही आपके competitive ब्रांड्स मौजूद हैं. तो आपने इस किस्म की कौन सी एक competitive strategy build up करनी है that would be a source of providing you the maximum kind of benefit जो आप global या international होके achieve करने का एक goal रखते हैं. So in this article by D. Giovanna, we would be studying his perspective and we would be seeing that what kind of segmenting, targeting, and positioning strategies can we study as an approach for global markets. In today's lecture, the learning objectives are that we would know how to develop an international market selection process. कि किसी भी market को जब हमने select करना है, हम इस तरह से without knowing and without being properly and 100% informed, हम किसी भी market को select नहीं कर रहे होते. Obviously, we are using people, we are using resources. We are also using a kind of a selection process जो कि help out कर रहा होता है कि किस तरह से आप अपनी market के अंदर आप enter करना चाहते हैं और किस तरह से आप उसको अपने goal को वहाँ पर achieve करेंगे. Secondly, we would be studying that segment global, how we can segment global markets through macro and micro segmentation. We would be knowing how to evaluate market attractiveness and competitive strength, how we can apply different methods to define our market size, because obviously there are a number of people when we are serving ourselves or serving our business to the global world. Similarly, what is the criteria for that we apply for a target market? कि जब हम segmentize कर लेते हैं तो फिर हम उसमें से best possible target को पकड़ते हैं कि these are the people that we are going to target basically. How we can understand the difference between concentrated, differentiated, and undifferentiated strategies, and we would be seeing that how can we gain competitive advantage through positioning.
So first of all, with a global perspective, what is segmentation? Segmentation obviously जब आप सब set बना रहे होते हैं, जब आप classify कर रहे होते हैं अपनी market को similar needs पे, similar kind of behavior पे. For example, मैं अपने customers को segmentize कर रही हूँ who are related to the working class, जो jobs करते हैं, and have a family to support. Then I'm segmentizing my customers who are dependent on other people for finances. और वो उन्हीं के ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह से स्पेंडिंग करते हैं अपनी. और फिर मैं एक तीसरी क्लास बनाऊं कि who are just spending for luxury products and just to fulfill their desires. अब ये segmentation मैंने कर दी on the basis of financial decisions and purchasing power. Similarly, मैं अपने demographic segmentation करती हूँ कि मैं age के ऊपर अपनी market को segmentize कर रही हूँ कि कुछ products मेरी होंगी जो 5 to 10 years के बच्चों के लिए होंगी, फिर उसके बाद teens के लिए होंगी, और फिर उसके बाद middle aged और old age people के लिए होंगी. So I'm segmentizing basically my consumer base who have this similar kind of needs. अब वो चाहे demographic वे में मैं segmentize कर रही हूँ या मैं वो psychographic वे में segmentize कर रही हूँ, वो that is upon me and my level of approach in classifying that specific kind of market there. Coming to targeting. Targeting is basically the process of seeing that जो मैंने segmentation की है उसमें which is the most attractive segment, यानी ऐसा कौन सा segment है इन सारी classified segment में से जो मुझे सबसे ज्यादा profitable लगता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको target करूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करूँ तो I can achieve a lot of growth, I can achieve a lot of sales and I can achieve a lot of profit. सो ये वो मेरा पोटेंशियल किस्म का सेगमेंट होगा जिसके ऊपर जरा सा काम कर लेने से या तवज्जो दे देने से मैं बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने बिजनेस को चला सकती हूँ. आफ्टर टारगेटिंग आई नीड टू पोजीशन मीन्स एक तरह से यू आर क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कि आप अपने आपकी एक जगह बना रहे हैं इन द माइंड ऑफ दोज पीपल जिनके माइंड में पहले से ही आपके कंपेटिटर्स भी हैं और मिलियन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी हैं, लेकिन आपका कैसे स्टैंड आउट करेगा कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट या ब्रांड, दैट इज पोजिशनिंग, दैट यू नीड टू प्लेस योर प्रोडक्ट, योर सर्विस or your offering in the mind of consumer, और वो किस तरह से आप कर रहे हैं, that is upon a lot of relying upon a lot of strategies as well. जब हम लोकली मार्केट्स में काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दिस थिंग इज नॉट बिग ऑफ अ डील कि हम सेगमेंटाइज करें, हम टारगेट करें, पोजीशन करें, लेकिन whenever we are talking about markets that we are working with internationally or globally, obviously वहाँ पर ये चीज ज्यादा complex है as compared to domestic markets and their STPs. Because one of the reasons identified here is that we need to identify target countries based on macro segmentation, prioritization, and countries who hold the highest strategic values. There are a number of countries जहाँ पे हम अगर देखें कि वहाँ पर उनकी strategic planning, उनकी import export dealing, उनकी market dealing, उनकी market strategies are not very in aligned and in position to what a company जो enter होना चाह रही है, जो host company enter होना चाह रही है उस market से इतनी align नहीं कर पाती. Why is that? Because of prioritization. कि हर मार्केट सेगमेंट की, हर लोकेलिटी की डिफरेंट किस्म की मार्केट प्रायोरिटाइजेशन होती है. Whenever we are talking about entering into a global kind of a company, that place can never be the same. लिहाजा डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा
it is very difficult to go towards a global company and then to reach towards it, because you have no 100% idea of how its preferences would be, वो उसको वो market prioritize कैसे होती है वहाँ, financial rates किस किस्म के हैं वहाँ पर, rate of returns, paybacks, present NPVs, ये सारी चीजें किसी ना किसी मार्केट की नेचर को डिस्क्राइब कर रही होती हैं. Similarly, you need to identify target consumers within global markets by micro-segmentation and targeting the micro-segments that show greatest opportunity. Obviously, जब macro segmentation एक bigger scale के ऊपर segmentation हमारे लिए difficult हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर preferences देखना, prioritization देखना becomes a little difficult. तो तब हम move out करते हैं micro segmentation की तरफ, जहाँ पर हम मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके या छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके वी आर ट्राइंग टू सी और वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व व्हाट आवर मार्केट इज ऑल अबाउट. जाहिर है जब आप छोटे स्केल के ऊपर अपनी कंज्यूमर बेस को सेगमेंटाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि हर 10 पार्टिसिपेंट्स का एक सबसेट, हर 10 कंज्यूमर्स का एक सबसेट बनाएंगे, दैट वुड बी अ माइक्रो सेगमेंट एंड दैट वुड बी a little less complex than macro segmentation. Two options from segmentizing, targeting, and positioning on global markets are as follows: that there can be similar segmentation found, क्योंकि market बहुत बड़े scale पर है आपकी. It is not just a small locality. Similarly, segmentation can find a completely different market where a new market strategy will be needed to succeed. The thing that is very much of higher importance here, कभी भी market strategy आपकी, it can never be 100% the same as the one that you used with any of the previous global markets. अब अगर हम ये सोच लें कि I introduced one of my businesses in 2019 to the global market, और अब I'm trying to touch up another कंट्री साइड या मैं यूरोपियन साइड पे जाना चाह रही हूँ अपने ब्रांड को लेके, तो आई थिंक द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट आई यूज टू सेगमेंटाइज back in 2019 would be similar to the marketing strategy that I want to use right now for all the European countries that I want to enter. So segmentation can just get you into a totally different kind of a market, जहाँ पे आपको एक totally from scratch new marketing strategy बना के build करके implement करना होगा. Similarly, उसमें if we just go across some of the things that we need, is that we are living in basically a world of digitization. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर इस तरह से दूं कि कंज्यूमर प्रोफाइलिंग आप जितनी भी देखें जो हो भी रही होती है हमारे इर्द गिर्द. फॉर एग्जांपल यू कॉल सम ऑफ द फूड डिलीवरी company. For example, you called McDonald's and you wanted to get some home delivery for yourself. अब ऐसा पहले भी हुआ है that you have been a customer of McDonald's and whenever you just call through their helpline, तो जो वो कस्टमर सर्विस के जो ऑपरेटर्स बैठे होते हैं, they just confirm your telephone number or just your name, and after that they um, just in a very much of a second वो सारी की सारी डिटेल्स आपको आपके बारे में दे देते हैं, that where do you live and आप किस शहर से बात कर रहे हैं, आप किस जगह से बात कर रहे हैं, एंड बिकॉज ये किस तरह से है, टेक्नोलॉजी से कैसे है कि हम कस्टमर प्रोफाइलिंग कर रहे हैं. हम कस्टमर प्रोफाइलिंग जहाँ पर पहले हम अपने लोकेलिटी के ही सिर्फ डाटाबेसेस को मैनेज किया करते थे, वहाँ अब ग्लोबली इस कदर इस चीज का ट्रेंड है, इस कदर इस चीज का पॉजिटिव यूज और सेल्स के ऊपर इफेक्टिव किस्म का इसका इम्पैक्ट है कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज वाइडली बीइंग यूज्ड नाउ. यू जस्ट पिक अप योर फोन, आप जैसे ही वो हेल्पलाइन पे डायल करते हैं तो आपको मजीद कोई और डिटेलिंग देनी ही नहीं पड़ती. And obviously, it gives you an extremely wanted kind of an homely experience
that this company or this brand, this specific multinational brand, knows about you. It knows your details and it knows about you as a customer profile person. They know about you as a consumer. और ये this is all because of technology. अब why am I giving this example? कि ये कोई छोटी मोटी लोकल कंपनीज नहीं करी, ये कंपनीज जो कि ग्लोबल हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप देखें इतनी टेलर्ड हैं कि उस जगह को वो इस तरह से फिट इन कर जाती हैं जिसमें वो आके अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश कर रहे हैं. Similarly, brands who are such big and global in nature are doing all of these things with the help of technology. So, um, it is basically allowing all the consumers to communicate. Obviously, आप अपने interest को communicate कर रहे हैं. Similarly, you can have customized communication for brands produced. You can see brands producing customized kind of things for people. तो ये सारी की सारी that is due to technology. And then you can help create an infinite number of relevant customer segments. जहाँ पर you can be obliged by that specific company. अब ये सारी चीजें जो हो रही होती हैं हमारी, ये customer profiling या हम we have been obliged by some kind of a company or anything, ये आपकी customer segment के through ही हो रही होती है. And the one possible positive aspect to this is that it is just giving you a wholesome experience, and it is just giving you a positive experience, and obviously it is somehow impacting sales as well. Internet की वजह से या digitization की वजह से one of the things that has helped a lot to markets is that हमने हमारे लिए segmentize करना, target करना, position करना बहुत आसान है. वो दौर अब हमारे पास नहीं है जहां हम मैन्युअली अपने डेटाबेसेस इकट्ठे किया करते थे कि कितने हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्रोफाइलिंग हमने कैसे करनी है, उनको सेगमेंट हमने एज की बेसिस पे करना है, इनकम की बेसिस पे करना है. अब टेक्नोलॉजी का दौर ऐसा है कि कंपनीज आपके लिए ये टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं. सिमिलर टू दिस एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, व्हेनेवर यू आर वाचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब, आपको अचानक से एक ऐड बीच में आता है कि विद इन द पास्ट 1 मंथ आपने YouTube के ऊपर इसमें से किस प्रोडक्ट का एड सबसे ज्यादा देखा है, और वो आपको कोई ऑप्शंस दे रहा होता है, एंड आप केयरलेसली या केयर फ्री होके किसी ऑप्शन को सिलेक्ट भी करके बता देते हैं और आप उस सर्वे को सबमिट कर देते हैं. इस तरह की बेशबहा एग्जांपल्स हमारे सोशल मीडिया पर आती हैं. सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप देखें, हर किसी की फेसबुक, हर किसी का इंस्टाग्राम आपको इस किस्म की चीजें दिखा रहा होता है या उन चीजों के एड्स आपको दिखा रहा होता है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स और आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं. हाउ इज दैट हैपनिंग? क्योंकि बैक एंड पे these things and our activities are being monitored. And how is this happening? Because of internet. And what things are being monitored या किस तरह से हम उनको monitor कर रहे हैं कि हमने in the past few weeks किन pages को like किया, किन posts को like किया, किन images को हमने like किया, हमारा interest कहाँ था, हम किन चीज़ों के बारे में डिबेट्स कर रहे हैं या किन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनको उनकी वीडियोस देखना. तो वो सारी चीज़ें एज अ क्रक्स आपका सोशल मीडिया का पार्ट बन जाती हैं और विदाउट योर कंसेंट इवन आपको उसी किस्म की फेवरेबल चीज़ें और आपकी प्रेफरेंस से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं जो समहाउ यू वांट टू सी. अब बैकएंड पे तो आपको लग रहा होता है कि दिस इज हैपनिंग फॉर यू, लेकिन दिस इज बेसिकली हैपनिंग फॉर द कंपनी एंड फॉर द कंपनी टू मैनेज ऑल ऑफ द डेटाबेस. अब यहाँ पर उन्होंने लिखा कि द इंटरनेट हैज ऑलरेडी अलाउड टू एस्टैब्लिश न्यू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेगमेंटाइजिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. तो वो इसी तरह से हो रही है कि हम लोगों से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू जितने भी ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं ये डाटा गैदर कर रहे होते हैं कि क्या चीज हम शौक से देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे आई एम वॉचिंग एन एड फॉर अबाउट कोका कोला, तो ऑब्वियसली ये बात बैकएंड पे जा रही है उन लोगों के पास कि इतने कंज्यूमर्स ने हमारे एड को या अराउंड द वर्ल्ड इतने लोगों ने हमारे एड को देखा. अब वो देखना इज एक्सट्रीमली अनइंटेंशनल, इट इज एक्सट्रीमली कोइंसिडेंस,
लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझे इसी किस्म की चीजें रिलेटेबल नजर आने लग जाएंगी जो कोक के ब्रांड से रिलेटेड होंगी. So this is how internet is basically dealing with it. Similarly, another example is I don't know if you have listened the name of Nielsen, Nielson. Nielsen is a research firm company. Um, और Nielsen का काम ही consumer database collect करना है, and in millions of dollars ये हमारी जितनी भी global companies हैं जैसे कोक है, नेस्ले है, पेप्सी है, इन सबको ये सेल करते हैं. सो दैट इज नाउ बिजनेस एज वेल कि वो कंज्यूमर्स का डेटाबेस, उनकी प्रोफाइलिंग करना, देखना कि सेल्स किस रीजन में ज्यादा हुई, और सेल्स अगर हुई तो किस एज के लोगों ने ज्यादा आपकी प्रोडक्ट या आपके ब्रांड को खरीदा, और जिन्होंने खरीदा उन्होंने क्या आपको कैश पेमेंट की, क्या उन्होंने कार्ड पेमेंट की, या उनका पेमेंट मोड क्या था. So all of these things are being obtained through internet digitization. Similarly, whenever we talk about the marketing selection process, तो उसमें सबसे पहली चीज हम लोगों की फर्स्ट स्क्रीनिंग, सेकंड स्क्रीनिंग और फिर माइक्रो सेगमेंटेशन होती है. यानी आपने नैरो डाउन करना है इन वेरी इजी टर्म्स कि पहले आपने 15 प्लेसेस को टारगेट किया कि लेट्स ग्लोबली स्टार्ट वर्किंग इन दीज 15 कंट्रीज. अब ये बेसिकली आपकी मैक्रो सेगमेंटेशन है, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ एक लोकेलिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ 15 ममालिक की बात कर रहे हैं. जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, फर्स्ट स्क्रीनिंग से आपने सेगमेंटाइजेशन किया ऑन कंट्री बेसिस. किस, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसमें चाइना रखूं, मैं उसमें फ्रांस रखूं, मैं उसमें टर्की रखूं, मैं उसमें डिफरेंट रीजन के जगह रखूं. अब उसमें से मुझे सेगमेंटाइज करना है कि चाइना जाना वुड बी गिविंग मी अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज. टर्की जाना it would be giving me an advantage कि वो एक Muslim country है. It would be very easy to communicate, very easy to touch up the consumers there. तो ये मेरी मैक्रो सेगमेंटेशन है जहां पर मैं सिर्फ अभी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, कंट्री के कल्चर और लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से मैं जगहों को देखूंगी. फॉर एग्जाम्पल, if I am trying to enter into a market जिसके बारे में मशहूर है कि दिस मार्केट इज बेसिकली हैज रिच टेस्ट इन फूड, या वहां पर वो जगह ही मशहूर अपने खाने पीनों से. तो अब एक ऐसी लोकेलिटी को एंटर करना किसी भी इस किस्म की मार्केट को दैट हैज रिच कल्चर इन फूड, और फिर एक ऑन द अदर हैंड एक ऐसा कंट्री दैट आई कैन सी और ऑब्जर्व, या मुझे इन्फॉर्म किया जा सकता है इस बात को कि दे डोंट हैव वेरी मच रिच प्रेफरेंसेस इन फूड. और फिर ऑन द अदर हैंड आई एम अ कंपनी XYZ जो कि कोई फूड ब्रांड ही लॉन्च करना चाह रहा है, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन ए, यानी वो कंट्री जिसके अंदर वो फूड कल्चर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है. सो यहाँ से मैं मैक्रो सेगमेंटेशन अपने कंट्रीज की करती हूँ. फिर उसके बाद मैं अपनी सेकंड स्क्रीनिंग करूंगी जिसमें आई वुड बी ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज कि किस मार्केट से मुझे ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, और उसके बाद उसमें से मजीद स्क्रीनिंग करके मैं माइक्रो सेगमेंटेशन करके अपने 15 से 4 कंट्रीज के ऊपर ले आऊंगी. यानी मैंने अपने टारगेट को कट शॉर्ट किया जितना मैं कर सकती हूँ. व्हाई? बिकॉज आई नीड टू सी कि मैंने किस तरह से हर सेगमेंट के ऊपर काम करना है. सो दिस इज बेसिकली द मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस के जो मैक्रो और माइक्रो स्क्रीनिंग के थ्रू हम कर रहे होते हैं. Please go through these concepts of market selection process, the macro segmentation, the prioritization and second screening, the micro segmentation, and these things that are considered to be extremely important in an age of digitization जिसको हम आजकल face भी कर रहे हैं. Similarly, the concept of segmentizing, targeting and positioning a global market in a global market. So please just go through the lecture and you can let me know for any queries. Thank you so much.